welcome to Wings After 12th. In today's video, we'll be learning some concepts related to time, speed and distance, which is a very important topic for all the exams. See, मान लेते हैं D is the distance that needs to be covered, ठीक है? D distance हमें cover करना है between points A and B, ठीक है? Let us assume the distance between point A and B is D. So while going A to B, while going from A to B, the speed is S1 and the time taken is T1, right? And while returning, that is from B to A, let us say the speed is S2 and the time taken is T2, right? From going A to B, the speed is S1 and the time is T1, and from returning from B to A, speed is S2 and time is T2. अब क्या होगा? We know that distance is speed into time, right? Distance is speed into time, right? Distance is speed into time. अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, the distance between A to B is same as the distance between B to A. So we can write distance is equal to S1 into T1, right? Speed into time is the distance. And in this case, we can say that distance is equal to S2 into T2. But we know that in both the cases, the distance traveled is the same. ठीक है, हमें ये पता है कि दोनों ही केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो सेम है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि S1 into T1 is same as S2 into T2, right? तो यहां से हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो मिलता है. रेशियो ये है कि स्पीड 1 बाई स्पीड 2 इज इक्वल टू टाइम 2 बाई टाइम 1. वी कैन से कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो द रेशियो ऑफ स्पीड is inversely proportional to the ratio of times, right? When distance is constant, the ratio of speeds is the reciprocal कह सकते हैं हम of the ratio of time. ठीक है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, S1 by S2 will be equal to T2 by T1. Because speed and time are inversely proportional, right? Speed अगर इंक्रीज हो जाती है तो हमें कहीं भी पहुंचने में टाइम कम लगता है, और अगर स्पीड अगर कम होगी तो हमें कहीं पे भी जाने में टाइम ज्यादा लगता है, राइट? आप इसे नोट कर लें. अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. मान लेते हैं A travels at speed S1 for T hours, and B travels at speed S2 for T hours. यहां पर क्या है, A और B दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों की स्पीड अपनी अपनी है, बट दोनों का जो टाइम है वो सेम है, राइट? तो A के केस में डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और B के केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा दैट विल बी S2 इनटू T. ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि D1 by S1 इज इक्वल टू T
और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि d2/s2 इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे सिंस वी नो कि दोनों ने इक्वल टाइम के लिए ट्रैवल किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो टाइम है दे आर इक्वल। सिंस a एंड b, since A and B both have traveled for equal time, d1 by s1 is equal to d2 by s2, right? d1 by s1 is equal to d2 by s2। इससे हम ये कह सकते हैं कि d1 upon d2 is equal to s1 upon s2। ठीक है, d1 by s1 was d2 by s2, और इससे हमें पता चल जाता है कि d1 by d2 is equal to s1 by s2। This is a very important relation। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं स्टेटमेंट, when time is constant, the ratio of speeds is equal to the ratio of distances। When time is constant, the ratio of speed is equal to the ratio of distances। तो speed और distance ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हैं। अगर सेम टाइम में हम ज्यादा स्पीड से चलते हैं तो हम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, और अगर हम कम स्पीड से चलते हैं तो हम कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। While traveling from college to home, Amit's car developed a problem due to which it took him 16 2/3% more time than the usual time. His speed was what percent less than the usual speed? Okay, now let's suppose this is college and this is the home, Amit's home. Okay. First of all, we need to find out the fraction of 16 2/3%. तो 16 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। ठीक है, अब स्पीड जो है 1/6 से डिक्रीज हो रही है, तो मान लेते हैं कि पहले स्पीड अगर 6 है ना, हम मान लेते हैं कि जो अगर पहले स्पीड 6 है तो बाद में ये 1/6 डिक्रीज हो रही है, तो इट बिकम्स 5, राइट? स्पीड इज डिक्रीजिंग बाय 1/6, तो ये 6 से हो गई 5। अब हमें पता है कि कॉलेज और होम के बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, सो व्हेन d इज कांस्टेंट, वी जस्ट सॉ व्हेन d इज कांस्टेंट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का जो रेशियो होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम का रेशियो। तो s1/s2 विल बी इक्वल टू t2/t1। So now let's have a look at the first question. While traveling from college to home, Amit's car developed a problem due to which it took him 16 2/3% more time than usual time. His speed was what percent less than the usual speed? Okay. So Amit जब कॉलेज से घर जा रहा था, दिस इज द कॉलेज लेट्स सपोज, एंड दिस इज द होम, व्हाट हैपेंड इज उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम आई और उसकी वजह से इट टुक हिम 16 2/3% मोर टाइम। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि 16 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है। 16 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो पहले हम कह सकते हैं कि टाइम अगर 6 लगता था तो बाद में लगा 7। ठीक है ना, 1/6 से टाइम इंक्रीज करा, तो पहले अगर टाइम लगता था 6 तो अब टाइम लगेगा 7। दिस इज t1, मान लेते हैं दिस इज t1, तो दिस इज t2, राइट? अब वी नो दैट व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो क्या होता है, टाइम का जो रेशियो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, राइट? टाइम का जो रेशियो है उसका रेसिप्रोकल रेशियो होगा स्पीड का।
तो इसका मतलब S1 जो पहले 6 यूनिट थी अब S2 हो गई है, S1 जो पहले 7 यूनिट्स थी अब हो गई है 6 यूनिट्स। टाइम अगर 6 यूनिट से 7 यूनिट हो जाता है तो इसका मतलब स्पीड हैज डिक्रीज फ्रॉम 7 यूनिट्स टू 6 यूनिट्स। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन स्पीड। तो परसेंटेज डिक्रीज इन स्पीड, percentage decrease in speed is decrease by initial value into 100, ठीक है, decrease by initial value into 100% which is 1/7 which is 14.28%। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम अगर 16/3% एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड जो है वो 1/7 यानी कि 14.28% से डिक्रीज हुई होगी। अब इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो कि टाइम जो है ना वो 1/6 से इंक्रीज हो रहा है, टाइम इज गोइंग अप बाय 1/6 है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो स्पीड हैज टू बी डिक्रीज, तो स्पीड को कम होना पड़ेगा। अब कभी भी इस फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर को टच नहीं करते हैं, वी ऑलवेज चेंज द डिनोमिनेटर, ये रूल आप याद रखना बस। हम न्यूमरेटर को चेंज नहीं करेंगे, हम डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। तो स्पीड कम हो रही है, कम होने के लिए फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर चेंज नहीं कर सकते तो वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, राइट। अब स्पीड हमें कम चाहिए तो इस फ्रैक्शन को छोटा करना होगा। फ्रैक्शन को छोटा करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर हम कैसे इंक्रीज करते हैं, हम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं सिंपली। तो यहां पे हमें पता चल गया कि स्पीड 1/7 से डिक्रीज होगी विच इज नथिंग बट 14.28%। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। A car leaves city A at 8:30 a.m. and expects to reach city B, which is 300 kilometers away from city A, at 12:30 p.m. But at 10:30 a.m. the driver finds that, at 10:30 a.m. the driver finds that he has traveled just 40% of the total distance. So by how much should he increase his speed in order to reach his destination as per the expected time? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिटी ए से सिटी बी तक जाने का प्लान है एंड द एक्सपेक्टेड टाइम इज 8:30 to 12:30 which is 4 hours. Expected time is 4 hours and the distance is 300 kilometers. ठीक है, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर्स, एक्सपेक्टेड टाइम इज 4 hours। बट हुआ क्या, जब 10:30 बजे, दिस इज AM, दिस इज PM, at 10:30 a.m. उसने देखा कि he has covered just 40% of the distance। तो 300 का 40% कितना होगा, 300 का 40% होगा 120 किलोमीटर्स। इसका मतलब 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर्स कवर किया है। बाकी के 2 घंटे में उसको 180 किलोमीटर्स कवर करने पड़ेंगे, राइट, तब जाके वो 4 घंटे में पहुंच पाएगा, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां पर टाइम इज कांस्टेंट, पहले भी 2 घंटे हैं, बाद में भी 2 घंटे हैं। तो व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, the ratio of distances is equal to the ratio of speeds, right? तो डिस्टेंस कितना हो रहा है 120 पहले 2 घंटे में चल रहा है और नेक्स्ट 2 आवर्स में उसे चलना है 180। दिस शुड बी द रेशियो ऑफ स्पीड्स। तो पहले की स्पीड उसकी होगी, लेट्स से 40 से कैंसिल करते हैं उसको, 3, 40 से ये नहीं कैंसिल होगा, 20 से करके देखते हैं, 6 और 9 और 3 से कट जाएगा, फिर 60 से कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली 2/3, राइट, 60 से कैंसिल हो जाएगा 2/3। तो स्पीड हैज टू बी इंक्रीज फ्रॉम 2 यूनिट्स टू 3 यूनिट्स, राइट। स्पीड जो है ये 2 यूनिट से 3 यूनिट्स होगी, मतलब पहले अगर स्पीड है 2 तो बाद में स्पीड होनी है 3।
तो क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज द स्पीड। तो परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड क्या होगा, 2 से 3 हो रहा है 50%, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड, परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड क्या होगा, इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, ठीक है ना। 2 से 3 हो रहा है तो इंक्रीज कितना हो रहा है 1 का, और पहले कितना था 2, तो स्पीड हैज टू बी इंक्रीज बाय 50%। तो स्टूडेंट्स आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हो एंड आई ट्राई टू आंसर दैट, ठीक है। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।